ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ, ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਵਿਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, these banks maintain a minimum reserve as per minimum reserve ratio and the rest of the amount is lent to those customers who need credit। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਨ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਨਰਲੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਗਿਵਸ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਈ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ is less than the value of asset kept as a security by the customer। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਐਸਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ 12 ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਸਟਮਰ ਇਨ ਫੋਲੋਸ ਵੇਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ ਟੂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਨ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਬੋਰੋਰ ਮੇ ਵਿਡਰੋ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਮੇ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਰ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਨ ਸੱਚ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਚਾਰਜਸ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਬਾਏ ਦਾ ਬੋਰਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਸਟਮਰ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ may allow those customers who have current account deposit with it to withdraw more money than what they have in their account and this is known as overdraft। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਓਪਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ,
बट सानू की आ 15,000 रुपए की नीड आ, तो असीं 5,000 एक्सट्रा कढ़वा रहे हैं, तो वो साडा ओवरड्राफ्ट हो जाऊगा। ठीक है बेटा। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू द ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स। हाँ जी, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होंदी है, मतलब कि बहुत थोड़े समय लिए ओवरड्राफ्ट की जिहड़ी फैसिलिटी दी जाती है, तो सिर्फ उन्होंने कस्टमर्स नूं ही दी जाती है जिहड़े भरोसेयोग होण। ठीक है बेटा। द कस्टमर पेज इंटरस्ट टू कमर्शियल बैंक्स ऑन द अमाउंट विच ही हैज़ विड्रॉ इन एक्सैस ऑफ द अमाउंट लाइंग इन हिज अकाउंट। हाँ जी, जिहड़े कस्टमर्स होंदे आ उन्होंने सिर्फ उही अमाउंट पर ब्याज पे करना पैंदा, उही अमाउंट पर इंटरस्ट पे करना पैंदा जिहड़ी उन्होंने एक्सैस विड्रॉ करवाई आ। मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि 15,000 जे सानूं नीड आ, तो 10,000 साडे अकाउंट 'च 5,000 असीं एक्सट्रा कढ़वा रहे हैं, तो 5,000 ते ही सानूं की इंटरस्ट पे करना पऊगा। Generally, the security of such a credit is the financial capital of the customer like shares, debenture, insurance policy, etc. तो जी इन्हों पर सिक्योरिटी रखी जाती है क्रेडिट तो जनरली कि होंगी है बेटा, शेयर्स हो जाएंगे, डिवेंचर या इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। हाँ जी, नैक्सट साडा आ गया डिमांड लोन। डिमांड लोन देखो बेटा की होगा, दैट लोन विच इज़ डिपॉजिटेड इन द लोन अकाउंट ऑफ कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ स्पैसीफिक अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड ऑफ द कस्टमर। हाँ जी, लोन की वो अमाउंट जिहड़ी कि कस्टमर के लोन अकाउंट में डिपॉजिटेड की जाऊगी जिहड़ी उहदी डिमांड थी। ठीक है बेटा, तो इनू असीं डिमांड लोन कहने आ। आफ्टर द एक्सैप्टेंस ऑफ सच अ लोन बाय द कस्टमर, कमर्शियल बैंक्स बिगेन्स टू चार्ज इंटरस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द लोन ईवन दो द कस्टमर विड्रॉ। हाँ जी, इत्थों ध्यान नाल पढ़ो कि जिहड़ी अमाउंट आ, हाँ जी, उन्होंने लोन अकाउंट 'च उन्होंने ट्रांसफर करती अमाउंट, तो की होगा जो कस्टमर ने एक्सैप्टेंस कर लिया लोन, मतलब कि उन्हें मान लिया भी मैं लोन ले लिया, इस तो बाद की है कमर्शियल बैंक वो इंटरस्ट चार्ज करना शुरू कर दूगी। ईवन दो द कस्टमर विड्रॉ ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ग्रांटेड एज अ लोन, चाहे कस्टमर की आ उहदा थोड़ा पार्ट ही यूज़ कर रहा, जिहड़ी उन्हें लोन लिया उहदा थोड़ा पार्ट ही यूज़ कर रहा वा। सच अ लोन कैन बी obtained अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फाइनैंशियल कैपिटल और अदर एसट्स। तो हाँ जी, तो इत्थे बेटा मैं ध्यान नाल तुहानूं दोबारा पॉइंट करवा दिंदी हाँ भी आप लोन ले लिया, तो ये जिमें असीं उपर पढ़िया सी भी वो सिर्फ उन्ना कैश क्रेडिट च पढ़िया सी कि सिर्फ उन्नी अमाउंट पर ही उन्होंने जिहड़ा इंटरस्ट पे करना पऊगा जिन्नी उन्हें की आ कढ़वाई आ, विड्रॉ करवाई है। बट जिहड़ा डिमांड लोन हुंदा ये चाहे जिन्नी भी अमाउंट कढ़वाई है जिन्नी नहीं कढ़वाई उन्होंने टोटल अमाउंट पर जिहड़ा की आ ब्याज देना पैंदा वा। ठीक है बेटा। सच अ लोन कैन बी obtained अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फाइनैंशियल कैपिटल और अदर एसट्स। हाँ जी, जिहड़ा इस तरह का लोन हुंदा डिमांड लोन आ, असीं ये की आ चाहे तो असीं अपनी फाइनैंशियल कैपिटल रख के गिरवी लै सकते हैं, चाहे फिर अदर एसट्स जी साडे कोल तो उन्होंने असीं एज अ सिक्योरिटी रख के लै सकते हैं। नैक्सट साडा आ गया बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स बेटा किहड़े होणगे, द लोन्स गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज शॉर्ट टर्म लोन्स। हाँ जी, जिहड़े बहुत थोड़े समय लिए प्रोवाइड किए जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, जिहड़े कि बहुत थोड़े समय लिए प्रोवाइड किए जाते हैं कमर्शियल बैंक द्वारा, उन्होंने असीं शॉर्ट टर्म लोन्स कहने हैं। ये 3 टाइप्स के होंगे, पर्सनल लोन, लोन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल तो लोन फ्रॉम प्रायोरिटी सैक्टर। हाँ जी बेटा, असीं मैं तुहानूं अगे ये एक्सप्लेन करदी हाँ किस तरह होंगे आ। पर्सनल लोन देखो बेटा किहड़ा होगा, पर्सनल लोन च की होंदा विच आर यूज्ड बाय कस्टमर फॉर पर्सनल यूज़। हाँ जी, जिहड़ा कि कस्टमर द्वारा अपनी पर्सनल यूज़ लई यूज़ किया जाता उन्होंने असीं पर्सनल लोन कहांगे। ये बैडिंग लोन हो सकता, ट्रैवल लोन हो सकता, मैडिकल लोन हो सकता, हायर एजुकेशन लोन हो सकता, कार लोन हो सकता। इट मीनस कि जिहड़ा कस्टमर अपनी पर्सनल यूज़ लई अपनी व्यक्तिगत वरतों लई जिहड़ा कढवाउंदा उहनूं असीं पर्सनल लोन कहांगे। नैक्सट साडा आया सी वर्किंग कैपिटल लोन्स। वर्किंग कैपिटल लोन्स बेटा की होगा, ग्रांटेड टू ओनली कंपनीज। हाँ जी, जिहड़ा लोन सिर्फ कि कंपनीज नूं ही दिता जाता विद हाई क्रेडिट रेटिंग, मतलब कि ज़्यादा इंटरस्ट ये जिहड़ा वसूलिया जाता वा लिया जाता वा, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर मीन। हाँ जी, ये काहदे लई दिता जाता बेटा, सिर्फ की आ उन्हां दे जिहड़े डेली एक्सपेंसिस आ, जिहड़े डेली के खर्चे आ उन्हां नूं पूरा करने लई दिता जाता, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट जां किसी होर काम लई दिता जाता। ये बेटा साडा की आ जूगा, इट इनकलूड्स सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता, जिहड़े खर्चे जिहड़े की आ कंपनीज ने पे करने होंगे। नैक्सट साडा आ गया प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग ऑन इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की होगा, ये की है भी प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की होंदा वा भी जिहड़ी इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय द बैंक
for providing a specified portion of the bank lending to a few specified sectors। हाँ जी, ये की होगा प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग मीनस की होंगे वा कि कुछ सैक्टर होंगे जिहड़े साडी सोसाइटी दे उन्होंने की इंपॉर्टेंट रोल है जिहड़ा दिता जाता वा बैंक द्वारा कि उन्होंने स्पैसीफाइड पोर्शन रखा जाता बैंक कोल कि उन्होंने ये लोन देना वा। ये किहड़े हो सकते बेटा जिवें एग्रीकल्चर सैक्टर हो सकता वा, पुअर पीपल फॉर हाउसिंग मतलब कि जिहड़े गरीब लोग आ उन्होंने घर बनाने लई दिता जा सकता वा लोन। स्टूडेंट फॉर एजुकेशन, हाँ जी स्टूडेंट फॉर एजुकेशन मतलब कि जिहड़े विद्यार्थी उन्होंने कि एजुकेशन लोन चाहिए वा। प्रायोरिटी सैक्टर मीनस कि पहल की तरह इन्होंने जिहड़े सैक्टर्स आ इन्हों की लोन दिता जाऊगा। आई होप बेटा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। हाँ जी नैक्सट देखो साडा की सीगा शॉर्ट टर्म लोन असीं पढ़ लिया। हाँ जी इस तो अगे देखो की आ ये भी जिहड़ा लोन आ काहदे ते बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस ते ही की है प्रोवाइड किया जाता वा। द होल अमाउंट ऑफ लोन इज डिपॉजिटेड the whole amount of the deposited in the account of the borrower and interest charged on the full amount of loan। हाँ जी जी होल अमाउंट मतलब कि पूरी अमाउंट है जी लोन की जोड़ा बोरोर आ जोड़ा कस्टमर आ वो अकाउंट च डिपॉजिट कर दी जाती है तो जोड़ा फुल अमाउंट आ लोन की वो जोड़ा इंटरस्ट चार्ज किया जाता। नैक्सट साडा आ गया बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक में एडवांस लोन्स बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज आल्सो। बिल ऑफ एक्सचेंज देखो बेटा की होगा बिल ऑफ एक्सचेंज विच की आ भी एक तरह नाल ये की आ डॉकूमेंट हुंदा वा जिहदे विच की आ जिहड़ा बोरोर आ वो की आ प्रॉमिस करदा वा कि मैं इन्नी अमाउंट देण लई वचनबद्ध हाँ चाहे तो डिमांड पे मतलब मान लो जो डिमांड करूगा ठीक आ उदों पे करनी है चाहे फिर सैट टाइम मतलब कि टाइम सैट किया होंगे कि मैं इन्ने टाइम बाद तुहानूं ये पेमेंट कर दूंगा। हाँ जी एग्जाम्पल किवें आ साइंड डॉकूमेंट दैट प्रॉमिस अ सम ऑफ पेमेंट टू स्पैसीफाइड पर्सन। किस तरह होगा एक साइंड डॉकूमेंट होगा जिहदे वो प्रॉमिस करदा वा कि जिहड़ा बोरोर हुंदा प्रॉमिस करदा वा कि मैं इन्नी अमाउंट आ जिहड़ी तुहानूं देण लई की स्पैसीफाइड पर्सन नूं देण लई की आ वचनबद्ध उहनूं असीं की कहने आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहने आ। सुनो इहदा मीनिंग क्लीयर हो गया होगा। अगे असीं पढ़दे हां कि किस तरह की ट्रीटमेंट हुंदा वा। हाँ जी इत्थे असीं पढ़िया सी जिहड़ी कमर्शियल बैंक आ उहदे ते की आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ते भी एडवांस लै सकदे आ लोन लै सकदे आ ते इहदे विच किस तरह लोन जिहड़े दिंदे बेटा वो असीं अगे पढ़ांगे। हाँ जी the basis of bills of exchange of the customer as and when the customer may need loan before the expiry of the term of those bills। हाँ जी साडे कोल बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैगा वा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਊਂਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ पेमेंट चाहिए तो असीं बैंक कोल हो की है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। डिस्काउंटिंग की होगा बेटा कमर्शियल बैंक डिस्काउंट द इंटरस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड लेफ्ट इन द मैच्योरिटी ऑफ द बिल्स प्रजेंटेड फॉर डिस्काउंट एंड द बीयर ऑफ द बिल इज ग्रांटेड लोन टू एक्सटेंट ऑफ द रेजिड्यूल अमाउंट। कमर्शियल बैंक बेटा की करती है डिस्काउंट द इंटरस्ट टू द एक्सटेंट मतलब कि वो साथ तो पेमेंट लै लेंदी है मैच्योरिटी डेट तो पहला जे असी अमाउंट लै रहे हैं बैंक तो साड़ी जिन्नी अमाउंट असी लै रहे हैं वो सानू की आ लोन दे देंगे आ तो वो सानू इंटरस्ट पे करना पैंदा वा। आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल्स कमर्शियल बैंक्स में इन कैश विल आइदर फ्रॉम ए कंसर्नड पर्सन और इंस्टीट्यूशन विच हैज़ टू बी इशूड दैट बिल। हाँ जी जो मैच्योरिटी डेट हो जाती है बेटा तो वो की करते हैं कमर्शियल बैंक इन कैश लै लेंदी है मतलब कि चाहे तो वो कि कंसर्नड पर्सन तो लै लैन मान लो किसी पर्सन ने जिन्हें दिता सीगा बोरोर सीगा वो तो लऊगी अमाउंट ਜਾਂ फिर इंस्टीट्यूशन जे किसी इंस्टीट्यूशन ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिता सीगा तो वो तो वो अमाउंट जी लऊगी। हाँ जी नैक्सट साडा आ गया क्रेडिट क्रिएशन। इन मॉडर्न टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन इज आल्सो कंसाइडर्ड टू बी अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन बेटा मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकी हाँ जिवें असीं मिनीमम रिजर्व रेशो रखनी सीगी ते बाकी असीं लेंट करनी सी उहनूं असीं क्रेडिट क्रिएशन ही कहने आ। किवें कहने आ देखो वैन एवर अ परसन डिपॉजिट सम मनी विद द बैंक जो कोई व्यक्ति कुछ मनी है जी कुछ पैसा वा बैंक जमा कराउंदा दैट बैंक कीप्स अ मिनीमम रिजर्व रेशो। हाँ जी मिनीमम रिजर्व रेशो रखूगा तो बाकी जी रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी वो की आ बोरोर नूं जिहड़े होणगे जिन्हां नूं नीड्स होगी क्रेडिट की उन्हां नूं की आ दे देणगे। When that customer who has borrowed money
ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਬੋਰੋ ਕਰੂਗਾ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਬੋਰੋਡ ਮਨੀ ਇਨ ਹਿਸ ਬੈਂਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਰੋ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ।